हे गाइस, एक क्विक फैशन अपडेट है आप सभी के लिए। गोइंकास लेकर आया है ईयर एंड सेल फ्रॉम 25th मार्च टू 31st मार्च। अब शादियों का सीजन तो चल ही रहा है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू शॉप। 10% ऑफ है ऑन एवरीथिंग और ये ऑफर गोइंकास के सभी ब्रांचेस में अवेलेबल है। गोइंकास के ऑल ब्रांचेस में आपको 10% ऑफ मिलेगा ऑल आर्टिकल में। तो आप अपने नियरेस्ट स्टोर पर जाकर इस सेल का पूरा एडवांटेज ले सकते हो। परफेक्ट टाइम है शॉपिंग करने के लिए, तो गो शॉप नाउ ओनली एट गोइंकास। आई एम सो एक्साइटेड, मैं तो जा रही हूँ। When your fashion is sorted, it's always a happy shopping. जल्दी 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 जल्दी, अरे आप लोगों को नहीं पता? इधर हम बताते, जल्दी आओ। सेल शुरू हो गया है। कहाँ? जोला में। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जोला में शुरू होने वाला है सेल। 25 मार्च से 31 मार्च तक यहाँ पे होगा ईयर एंड सेल। और इस ईयर एंड सेल में आपको मिलेगा 10% ऑफ ऑल आर्टिकल। जी हाँ, ऑल आर्टिकल। इट्स टाइम टू रिफ्रेश योर वॉर्डरोब बिकॉज द बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर इज हियर। इससे पूर्व हमारे जो नेशनल यूथ फेस्टिवल हुए थे वहाँ पर नई दिल्ली में, हमारे 30 बच्चे यहाँ से अंडमान निकोबार के गए थे। 7 लाख 15 बच्चे भी हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भेजे थे। कुल 45 बच्चे हम लोग भेजे थे। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर पर लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी। नमस्कार आदरणीय निर्णायकगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज का मेरा विषय है यूनियन बजट 2026 स्ट्रेंथनिंग यूथ पाथ टुवर्ड विकसित भारत 2047। Respected dignitaries, today I, Komalpreet Kaur, stand before you not just to talk about the numbers in the budget document, but to talk about the direction these numbers give to India's youth and future. As Amartya Sen has rightly said, development is freedom, and a budget reflects that freedom. The Union Budget 2026 is not merely an economic document, but it is a vision for Viksit Bharat. Just think of it, my friends. India has always grown through ideas, starting from ancient Gurukuls to the recent reforms like the 1991 economic reforms, Digital India, Startup India, Skill Development of 2015, National Education Policy of 2020, and many more. Today, India stands as the youngest major economy in the world with over 65% of its population below the age of 35. Yet, nearly 40% remain unemployed, revealing a gap between potential and their opportunity. Millions of them step forward with dreams, but opportunity lacks, leaving behind their potential waiting and not working. So I ask, will we build our youth's future or just make them question it? So the good news is the Union Budget 2026 didn't remain silent, and it responded with action with over 1.93 lakh crore fund for education, 62% rise in the skill development, shifting from degree to dignity, showcasing that allocation is just the start. But the real test is in its execution.
AI and cloud infrastructure boosting and their expansion through long-term tax incentives. Animation, VFX, gaming, comics creator labs for creating jobs for these creative careers. Supporting the girls which are participating in STEM labs by providing them hostels. These ideas suggest that the development is not just economical but it is holistic. कहा जाता है नीतियां कागज पर बनाई जाती हैं। जी हाँ, नीतियां बनाई तो कागज पर जाती हैं, पर सफलता केवल मेहनत से ही मिलती है। So, to strengthen this vision, I strongly recommend and suggest from my side for the creation of youth AI innovation hubs linking with industries and providing internships to the students. I wanted that there must be a creation of youth development index which is same as GDP, which will calculate the real progress, the skill, the innovation of the youth in their respective fields. And lastly, green skills mission for sustainable and future-ready jobs, because we want a developed India, but a sustainable one. Because the idea is not just to create skilled individuals, but to create capable nation builders. This union budget of 2026 has shown us the path, but a path has no meaning when we lack the courage to walk on it. So let us not just wait for the future to come. Let us create it, because one day the world will not ask India about what it planned, but it will surely ask about what its youth delivered. So let us dream boldly, act relentlessly, and build an India which the world looks up to. To end, remember, nothing is more powerful. I repeat, nothing is more powerful than an idea whose time has come. And indeed, Union Budget 2026 embodies that very idea. Dhanyavad, Jai Hind, Jai Bharat. आपका स्कोर को कंप्लीट की तो तब तक मैं सेकंड पार्टिसिपेंट को कॉल करूंगा। ओके, सेकंड पार्टिसिपेंट से हिमानी बाग टीजीसी से जिस मंच में आएगा आपको बताएंगे। भाई देख के छोटे पीछे मैं थोड़ा सा आगे लो ना सोफा को। Is folded in the hands of youth as flower within a seed. Namaste and a very warm good morning to one and all present here, respected panel of judges and vibrant heartbeat of our nation, the Yuva Shakti. I am Himani Bagh from Tagore Government College of Education, is highly privileged standing before you to speak on topic Union Budget 2026, strengthening Indian youth path towards Viksit Bharat 2047. Ladies and gentlemen, today we stand at a historic crossroad. As we debate about Union Budget 2026, we are not merely discussing about education, numbers or fiscal deficit. What we are discussing about is blueprint of Viksit Bharat 2047. A nation where youth will be prioritized. A nation where youth will be prioritized. Where developed India. A developed India where aspiration of 1.4 billion people are no more dreams, but a reality come true. When I talk about reality, can I start with what? सुनिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, कोई ऐसा नहीं, ठीक है, सवाल के लिए कोई एकदम एक मिनट देखिए हो ठीक है, ओके नेक्स्ट आप कैसे जाना अपने ठीक है Leslie Godwin from Mayapur College.
रेसी बॉडी वहाँ पर्दा में लगाओ। जो भी पार्टिसिपेंट्स है ना, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो, घबराने का जरूरत नहीं है। आराम से आके जो टॉपिक दिया गया है उस पर आराम से बोलेगा, कुछ नहीं, नथिंग है। सब आप जानते हैं, आप पढ़ते हैं, आप पढ़ाएंगे, आपको टीचर लोग की पढ़ाएंगे आगे चल रहे, ठीक है ना? भैया आवाज़ आता है, थोड़ा रुक जाइए 2 मिनट। कर दिए सब पहले ऑन है। To our respected junior members, with our teachers and all the students. Myself, Bessie Godwin, from BCom first year, a student of Mahatma Gandhi Government College, Mangalore. I am going to deliver a speech on the topic Union Budget 2026, strengthening the Indian youth path towards Viksit Bharat 2047. The Union Budget 2026-27 prioritizes sustainable growth and structural reforms focusing on capital expenditure, job creations, and manufacturing. Key highlight includes a new tax reforms, sorry, sir, shivering and not control myself, I'm getting nervous. बहुत से पार्टिसिपेंट थे हमारा भारत राज्य जय श्री कॉलेज Good morning, welcome presenter here. Myself, Rajendra Shri from Mahatma Gandhi Government College. Today I am standing here to tell a speech on the topic of Union Budget 2026, strengthening the India's youth path towards the Viksit Bharat 2047. In 2047, when the India celebrates 100 years of independence, what the role will you and I play? Will we be the spectator or will we be the architect towards the Viksit path? If you want to know the future of our nation, don't look at its policy, look at youth. Today I am standing here to tell that India is not a bride, it's also an unstoppable one. The Union Budget 2026 is not just a financial document, it is the blueprint of our dreams, roadmaps of aspiration, and most important, a promises for the India's youth, a promises to transform our journey towards the Viksit Bharat 2047. But I would like to ask one question. What is the real strength of our India? It is our GDP, it is our industry, or our technology? No. It is the 65% of the Indian youth population, their energy, their ideas, and the courage to redefine India. In 2026, this budget focuses on the skill development and digital learning, and the social information. It is not important about the degree anymore. It is important about the employability. From AI training startup, the government investing on the development of skills, ensuring that the youth are not just a job seeker, they are the job creator. Youth are not waiting for the opportunity, they are waiting for them. India is already a startup capital of the world and this budget strengthening their vision. This budget says that we trust you, go build this India of your own dreams. The focus of the Green Digital India
and the sustainable development places youth at the heart of our change. Young minds can lead learning, climate action, tech innovation, and the social information. Friends, a budget can allocate the fund, but only youth can transform that fund and its process it. A budget can create a scheme, but the youth can turn that scheme into a success story. As we move towards the Viksit Bharat 2047, let us remember that we are not just the beneficiary of this budget, we are its partner. So let us raise with confidence, work with dedication, and dreams without our limit. Because the journey of developing India is not just written by the budget alone. It is written by the brave efforts and determination of the youth, and that youth is us. Thank you and Jai Hind. Thank you. जोरदार तालियां अब आगे हमारे पार्टिसिपेंट सप्ताह बना तो मायावती कॉलेज अफ्ताब अहमद मायावती कॉलेज Respected Chairperson, honorable judges, and my dear friends. Imagine an India in 2047, an India where every mind is empowered, where every idea is funded, and every idea finds a platform. That is the vision of Viksit Bharat 2047. Today, I stand before you to highlight how the Viksit Bharat 2047 leads and to the benefits of the students. First, investment in education and skill. In India, the greatest resource is not oil or gold, but it's our youth. In India, more than 65% of the population is below the age 35. With the help of increased investment in digital education, AI-based learning, and skill development programs, the government can make the youth to develop their skills and enhance their learning skills and abilities. Because of the learning skill, they can pursue the goal, they can educate. Second, boost to startup and innovation. In India, India is the third largest startup innovation in the world. In India, it is the third startup ecosystem in the world. Second, boost startup and innovation. The India is recognized as the third largest startup ecosystem in the world. And with the help of increased infrastructure and digital education, we can encourage the youth to develop the entrepreneurship. And it is very necessary to bring the youth in the front. Third, employment generation and entrepreneurship. To increase infrastructure and Make in India projects and Digital India innovations. Many youth can be motivated to get a good education and can be motivated to achieve their goals. And for achieving their goals, it will be not beneficial for the student, but for all over the India. It will help in the GDP growth as well as in the benefit of the country. For focus on digital and green India. In India, the main focus is to promote the digital transformation and education. However, the budget cannot transform a nation alone. The policies provide direction and the youth provide the momentum. But it is our responsibility to contribute in this mission. It is not a mission of the government, but it is the responsibility of all of us. Because the Union Budget 2026 is a great strong step towards empowering India's youth. But it will not be completed if the youth does not contribute in this. Thank you, everyone.
यह वक्त साधारण नहीं है, ये वक्त है निर्णय का, ये वक्त है दिशा तय करने का और ये वक्त है भारत को विकसित बनाने का। इसी लक्ष्य के साथ आज भारत आगे बढ़ रहा है, जहां लक्ष्य है विकसित भारत 2047 और इस लक्ष्य की सबसे बड़ी ताकत है हम, यानी भारत का युवा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026 केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह मनुष्य निर्माण का एक राष्ट्रीय संकल्प है। यह बजट स्पष्ट रूप से यह संदेश देता है कि जब युवा सशक्त होगा तभी भारत विकसित होगा और इसी भावना को दर्शाते हुए आज का युवा यह कह रहा है कि युवा शक्ति का संकल्प, विकसित भारत एकमात्र विकल्प, विकसित भारत एकमात्र विकल्प। साथियों, इस बजट को यदि एक आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भारत अब अपनी जनसंख्या लाभांश को एक उत्पादक शक्ति बनाने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा रहा है। शिक्षा मंत्रालय के लिए लगभग 1,40,000 करोड़ का ऐतिहासिक आवंटन और कौशल विकास बजट में 62% की वृद्धि, जो कि लगभग 10,000 करोड़ है, ये केवल वित्तीय आंकड़े नहीं है, बल्कि ये युवाओं में किया गया वो निवेश है जो भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था की नींव रखेगा। इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है शिक्षा से रोजगार और उद्यम के बीच की दूरी को समाप्त करना, जिसके लिए प्रस्तावित उच्च स्तरीय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि हमारी पढ़ाई सीधे तौर पर उद्यम की आवश्यकताओं से जुड़ी हो। अब शिक्षा केवल एक डिग्री का पर्याय नहीं रहेगी, बल्कि आजीविका का सशक्त माध्यम बनेगी। साथियों, आज का युग तकनीक का युग है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार के इस दौर में हमारे युवाओं को भविष्य में होने वाली चुनौतियों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। 15,000 विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल सृजन प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि भारत का युवा केवल तकनीक का उपभोक्ता न रहे, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक सृजनकर्ता बन सके, क्योंकि पुनर्वार उज्जवल भविष्य, विकसित भारत का यही है दृश्य, विकसित भारत का यही है दृश्य। नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए एएनआरएफ के तहत प्रारंभिक 400 करोड़ का आवंटन, स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ का फंड और ट्रांसमीटर मिशन के लिए 40,000 करोड़ का निवेश ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत अभी आत्मनिर्भर और उत्पादक शक्ति बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। साथियों, यह बजट पूर्णतः समावेशी है। हमारी बेटियों के लिए हर जिले में आधुनिक छात्रावास, दिव्यांग युवाओं के लिए विशेष कौशल योजनाएं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1 लाख से अधिक पेशेवरों की तैयारी। ये केवल विकास नहीं है, बल्कि यह अवसरों का लोकतांत्रिकरण है, क्योंकि किसी कवि ने सही कहा है कि दिए खुद जलते हैं तभी रोशनी फैलती है, दिए खुद जलते हैं तभी रोशनी फैलती है, और जब युवा खुद बदलता है तभी सदी बदलती है, तभी सदी बदलती है। और इसी आंतरिक परिवर्तन की शुरुआत है हमारा 2026 का बजट। जब युवा कुशल होगा तो उसकी उत्पादकता बढ़ेगी, जब युवा नवाचार से जुड़ेगा तो रोजगार का सृजन होगा, और जब करोड़ों युवा एक साथ मिलकर एक ही दिशा में आगे बढ़ेंगे तो विकसित भारत निश्चित रूप से एक सुनिश्चित वास्तविकता बन जाएगी। यहाँ मैं दिशा से पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहूंगी कि हम युवा केवल इस देश का भविष्य नहीं है, हम भारत का वर्तमान है और परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्ति है। हम वो पीढ़ी है जो इंतजार नहीं करती, हम वो पीढ़ी है जो इंतजार नहीं करती, हम वो पीढ़ी है जो अवसर स्वयं बनाती है। तो आइए आज इस संकल्प में कि ज्ञान, कौशल और सम्मान, युवा ही बढ़ाएंगे भारत की शान, युवा ही बढ़ाएंगे भारत की शान। 2047 का भारत कैसा होगा ये कोई और नहीं तय करेगा। 2047 का भारत कैसा होगा ये हम युवा तय करेंगे। तो आइए अपने ज्ञान, कौशल और साहस से विकसित भारत को एक भव्य और सशक्त वास्तविकता बनाए। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपना वक्तव्य रखा। इसके पश्चात हमारे जो सेनेट Ashleigh Chacko from
अंडमान लॉ कॉलेज मंच में आएंगे आपको विचार करेंगे। We cannot build the future for the youths, but we can build the youths for the future. These are wise words by Franklin D. Roosevelt. A very warm good morning to one and all present here, honorable judges, respected dignitaries, and my dear fellow parliamentaries. Today I am Sri Sambhu from Andaman Law College stands before you all to speak on the theme given today, that is Union Budget 2026, strengthening Indian youth's path towards Viksit Bharat at 2047. When you heard the word Union Budget, what came to your mind? It must be numbers and percentages. But let me tell you, for a moment, remove those numbers and percentages from your mind, and you will realize that the Union Budget is a simple story, a story about the youth of the future. This shows us the aim that how can we make India into the Viksit Bharat of 2047 that we dream of. 100 years after the independence, and we see a developed nation. So first, we have the Union Budget that it recognizes us youths, making Yuva Shakti as its central theme. It recognizes the power. More than 65% of India's population is below the age of 35. Yes, you got it right. This is the youth of the country, and this shows that we are the right changers. We use our creativity and bring the changes in the country. This is guided, as suggested in the Union Budget, guided by 3 kartavyas that we have, or the kartavyas of the Union Budget itself. The first is accelerate and sustain the growth of India. It talks about development, but in a sustainable way, to make sure that the resources are available for the future generation as well. It talks about innovation, it talks about manufacturing to infrastructure to a digital economy in the world. It drives change, it drives the engine towards the growth. The second kartavya that we as youths and as well as the Union Budget has is to fulfilling aspirations for the youth. There is a huge gap today between the employment rates and the education rates. There is a problem of over-education. Why is this problem? Because there are no skills. And this way, this Union Budget aims to fulfill this gap through so many skill development programs, so many ways like online courses. There are even recognizing new career opportunities like gaming and animation. These are opportunities that were not even heard 100 years ago, or maybe even 3 years ago there was nothing. In the COVID period, these opportunities came forward. Next, the third kartavya is equity in development. Equity means every person should get equal opportunity. We as youth, we have seen the kartavyas, we have seen what the Union Budget does. It is a ground reality that there are advertisements, there are debates, there are policies, but the truth is there are still discriminations going on in our country. There are still ways in which the people are not given the right opportunities. There are young youths still suffering to make their voices heard, their voices are pressed down. We as youths, we have to understand this, that the budget can only allocate the resources. This is in the hands of the youth today, that we have to make sure that the youth, people like us, people of our age, get the opportunity to transform India. So the real question is not about what policies the budget brings. The real question is about what we as youths do to make sure that these policies are implemented in the country. Are these even done right? Are these only in the documents, or are these actually in the real life? So to conclude, I would like to say this, that we as youths, we are the power of the nation. We have to make sure that these are not just in the papers, these are in real life as well. We have to make sure that the changes that are in the country are not just in the papers, but in actuality. We have to stand for the nation. So let us pledge today that we as youth will stand together as a team and bring the opportunity to each student, because that is the only way to light the lamp towards the path of a Viksit Bharat. We have to make sure that we will fulfill the dream of Viksit Bharat, and
By the year 2047, this will not just be a vision, it will be a ground reality. Thank you, Jai Hind, Jai Bharat. पहले जो हमारे सेकंड पार्टिसिपेंट हिमानी जी, क्या आप रेडी हो क्या? हिमानी, अब कॉन्फिडेंट आया क्या आपका? क्या आप थोड़ा सा टाइम देगा? चले क्या? मैं हमारे नेक्स्ट पर्सन है हमारा आशु टेटे फ्रॉम महाराष्ट्र कॉलेज। कृपया मंच पर आइए और अपना विचार रखिए विषय पर। Union Budget transformed Indian youth from job seeker to nation builders. A very warm good morning to respected elders, beloved teachers, and my final youth. I am Anshu Tete, a student of BA History final year from Mahatma Gandhi Government College, Mayavandar. Today, I stand before you to speak a powerful topic, Union Budget 2026, strengthening the Indian youth path towards the Viksit Bharat 2047. India is one of the youngest nations in the world. Over 65% of its population comes under the age of 35. This is not a statistic, this is our strength. Union Budget 2026 is not merely a financial document. It is a vision to empower the Indian youth. Imagine a small young boy backpacked with heavy dreams, staring at a job ad that moves him, or a village girl held back with empty pockets. No more. Rupees 1.5 lakh crore sanction for youth skilling in AI academy, green energy labs, and drone factory in every district. Increased investment in digital learning, skill development program ensures that the young minds are not just educated but future ready. Rupees 10 lakh interest-free loan for startup, prioritize women. Education loan cut up to 2%, open IIT to merits. Mental health coordinated app to heal the hidden scars. The thunder without strike is nothing. This budget demands sweat, blood, fire from the height of Himalayas to the coast of Kerala. However, we must also understand that there is no perfect budget. In conclusion, the Union Budget 2026 is a vision to strengthen the Indian youth path towards the Viksit Bharat 2047. Rise, crush, conquer. Viksit Bharat isn't coming. We, the youth, are bringing it. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत बढ़िया। हमारे आशु टेटे जी ने बहुत ही अच्छी बोली। इसका पश्चात हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हो गए। Participant number 9, R. Sanjana from Nagpur College. R. Sanjana, Dr. Khalid. My dear Yuvana, the future depends on what we do in the present. I repeat, the future depends on what we do in the present. Greetings to ladies and gentlemen, my name is R. Sanjana, a proud youth of India. Today, I stand before you not just to speak on the topic, but to echo the voice of million young Indians whose dreams are waiting to be seen.
On February 1st, 2026, our Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Union Budget. This year, the budget is not merely about revenue and expenditure. It is about vision, ambition, and transformation. This year, the budget sends a clear message that India is not waiting for the future to become a developed country. Instead, it is building it every single day. This year, the budget creates opportunities through jobs and startups. It ensures growth in every sector. It prepares us for the future with skill in technology and AI. And it ensures that growth includes everyone. Now the real question is, are we channeling this massive power in the right direction? Will the budget alone make India a developed country? No, never. The budget gives direction, but the youth of this nation gives momentum. Let me remind you all with one thing, that India is not just a nation. It is a youthful energy in motion with more than 65% of its population below 35. India does not lack potential, it overflows with it. Now the question is, are we channeling this massive power in the right direction? युवा शक्ति केवल आंकड़ों में नहीं बल्कि बदलाव की आग में निकली है. If India truly dreams of becoming Viksit Bharat by 2047, then this budget must go beyond just a policy. It must become a movement where every individual, every village innovators, every young entrepreneurs feel seen, supported and empowered. आज का युवा सिर्फ कल का नागरिक नहीं, आज का परिवर्तन करता है. Our role as youth, we must ask ourselves that are we ready to innovate? Are we ready to take risks? Are we ready to lead the nation? We cannot wait for 2047 to arrive. We must build it every single day. By the time India completes its 100 years of independence, the world should not ask, can India become a developed country? Instead, it should say that India has already arrived. And when that happens, it will not just because of the policy and budget. It will because of the courage, innovation and determination of its youth. हम वो पीढ़ी है जो इतिहास नहीं पढ़ेगी, इतिहास बनाएगी. अगर आज भी नहीं जागे, अगर आज भी भाषणों तक सीमित रहे, तो याद रखिए विकसित भारत का सपना यही रह जाएगा. आज के दौर में चुनौतियां कम नहीं है. बेरोजगारी, असमानता, गलत निर्णयों की छाया हमारे आसपास है. हमें यह समझना होगा कि हम सिर्फ दर्शक नहीं, इस देश की सबसे बड़ी ताकत है. अगर कुछ गलत हो रहा है तो चुप रहना समाधान नहीं है. हमें अपनी आवाज उठानी होगी, सही के लिए, न्याय के लिए और अपने भविष्य के लिए. हम वो नागरिक हैं जो अपने देश के लिए और अपने भविष्य के लिए आवाज उठाएंगे. जब युवा जागता है तो देश आगे बढ़ता है, और जब युवा बोलता है तो देश मजबूत होता है. आइए हम सिर्फ विकसित भारत का सपना न देखें, बल्कि अपने आवाजों से उसे हकीकत में लाए. उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए. जय हिंद, जय भारत. हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, देवजी यादव फ्रॉम महात्मा गांधी कॉलेज, दिस वाइस जननी जन्मभूमि च स्वर्गादि गायसी, अर्थात माँ और मातृभूमि स्वर्ग के समान है. और कुछ इसी प्रकार मेरा भारत है सबसे महान, कुछ इसी प्रकार मेरा भारत है सबसे महान.
आदरणीय मुख्य अतिथिगण, सभी विधायक सभी अतिथिगण को मेरा आदर नमस्कार। मैं देवोजित अंदाज बीए राजनीतिक विज्ञान प्रथम वर्ष महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर उत्तर एवं मध्य अंडमान का छात्र आप सभी के समक्ष एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहूंगा जो विषय सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि हमारे देश का भविष्य है। तो उस विषय का नाम है यूनियन बजट 2026 विकसित भारत 2047 युवाओं के लिए एक सशक्त मार्ग। यहाँ मैं आज सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया। इसलिए नहीं कि आज एक प्रतियोगिता है बल्कि इसीलिए युवाओं का विचार व्यक्त करने के लिए। आप सभी के मन में ख्याल जरूर आया होगा यूनियन बजट, इससे हमारे देश के युवाओं के विकास का क्या लेना देना। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा यूनियन बजट सिर्फ एक वाक्य नहीं, यूनियन बजट सिर्फ एक शब्द नहीं, यूनियन बजट सिर्फ एक आर्थिक दस्तावेज नहीं बल्कि यूनियन बजट विकसित भारत के सपने की नींव है। जिस प्रकार एक मकान की नींव उसे सही दिशा और दशा प्रदान करती है, उसी प्रकार जो यूनियन बजट है वो हमारे देश के युवाओं को एक सही दिशा और दशा प्रदान करती है। लेकिन सिर्फ ये दिशा और दशा से ही नहीं होगा बल्कि हम सभी युवाओं का योगदान इसमें जरूरी है। आज का ये युग डिजिटलाइजेशन का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, आत्मनिर्भरता का युग है और यह युग कौशल विकास का है। और यूनियन बजट 2026 हमें ये मौका देता है कि हम स्वयं के अंदर कौशल विकास करें और देश के विकास में हम अपना योगदान दें। तो इस यूनियन बजट के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार है, जैसे आत्मनिर्भर एवं युवाओं में कौशल विकास। पहले हमें याद होता है पढ़ो 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 पढ़कर नौकरी करो, लेकिन आज हमें याद सिखाया जाता है कि स्वयं में कौशल विकास करो। मैं आपको ज्यादा दूर का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, हम अपने अंडमान निकोबार में देख सकते हैं। जब अब हम सारे कॉलेज में डिग्री करते हैं लेकिन डिग्री के साथ साथ अब हमें दक्षता नाम का कार्यक्रम भी दिया गया है जो हमें अपने डिग्री के साथ साथ कौशल विकास करने का मौका देता है। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल लिटरेसी आदि बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो हमें कौशल का विकास करता है। और यही तो खूबी है नए भारत की, ये सिर्फ दिखता नहीं, ये रचता है। और दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र में विकास। एक सिक्के के जिस तरह दो पहलू होते हैं उसी प्रकार भारत को विकसित करने के भी दो पहलू हैं, एक है ग्रामीण क्षेत्र का विकास और एक शहरी क्षेत्र का विकास। शहरी क्षेत्र का विकास तो संभवतः आसान है पर ग्रामीण क्षेत्र का विकास उतना आसान नहीं। लेकिन यूनियन बजट 2026 हमें यह मौका देता है कि हम ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास करें, ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट की सुविधा पहुंचाएं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागरूक करें और उनके अंदर भी कौशल विकास करें। और ये ज्यादा दिन दूर नहीं है कि एक छोटे से गांव का युवा भी एक बड़े कंपनी का सीईओ बन सकता है और ये होगा भी हमारा भारत, ये रचेगा भी। तीसरा एवं आखिरी मैं कहना चाहूंगा शिक्षा नीति। पहले बच्चों को जिस क्षेत्र में पढ़ाई की जाती है उसी क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिलता है, पर जैसे मैंने बताया दक्षता और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है जो युवाओं का कौशल विकास करते हैं, जो उनके जीवन चर्या के लिए भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ देश के विकास में अपना योगदान देता है। मैं ये कहना चाहूंगा ये विकसित भारत 2047 का सपना किसी एक सरकार का सपना नहीं है, किसी एक राजनीतिक दल का सपना नहीं है, किसी एक व्यक्ति का सपना नहीं है, किसी एक समूह का सपना नहीं है, ये हमारे पूरे भारत के युवाओं का सपना है और इसे हमें साकार भी करना है। साकार हम सभी की एकजुटता सार्थकता इससे ही होगी। आप सिर्फ कल्पना कीजिए 2047 का वो मंजर कैसा होगा जब भारत अपने आजादी का 100वां जश्न मना रहा होगा और भारत जब एक विकसित देश होगा, वो मंजर कैसा होगा। तब हम विश्व में अपनी अमिट छाप छोड़ेंगे, विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे और सदियों सदियों तक हमारे भारत की इस साहस की गीत गाई जाएगी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा भारत विकसित तो जरूर होगा, बस कमी है तो हम सभी युवाओं की एकजुटता की। अगर भारत का हर एक युवा धार्मिक राजनीतिक चीजों से ऊपर उठकर एक ही सपना देखे विकसित भारत, तो वो पूर्ण होगा। और मैं अभी सभी से निवेदन करना चाहूंगा, सभी युवाओं से, हम सभी को विकसित भारत का जो आवाज है उसे दिखाना है। तो सभी युवा कृपया करके अपनी जगह पर खड़े हो जाए। थोड़े सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी को मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि विकसित भारत के युवा का आवाज, भारत माता की। अरे
जोर से थोड़ा सा, इससे हमारे देश का आवाज दिखेगा। भारत माता की। तो कुछ इसी प्रकार है हम भारत की युवाओं का ऐसा। अंत में मैं अपनी एक छोटी सी पंक्ति से अपने भाषण को समाप्त करना चाहूंगा। एक स्वप्न, एक दृश्य, एक ही एहसास। एक स्वप्न, एक दृश्य, एक ही एहसास। विकसित एवं समृद्ध भारत हो, यही है हर भारत की भारतीय की एहसास। विकसित एवं समृद्ध हो हमारा भारत, यही है हर भारतीय की एहसास। जय हिंद। थैंक यू सभी को खड़े होने के लिए। Respected dignitaries, the organizers, the faculties of our reputed BA College and my dear students. See, जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर रहा था एक जज के रूप में, frankly speaking, insofar as to judge the marks of your people was difficult task for me, because almost all the students were very decent insofar as their performance is concerned, and one were the best among the other, truly speaking, and some 4-5 students who presented very well. I'm saying it without any official this. I like them, their presentation, and overall personality they exhibited over here was very good. It was really appreciated. But some few students got nervous, and that is obvious. That happens. They are very small, they are very young. But we hope, we must not give up. Once you are nervous here, it doesn't mean that you are becoming a failure. That is a part. Failure, there is no concept as such, failure or success alone. It depends on the person's perspective to understand certain concepts. तो इसीलिए कोई फेलियर नहीं है प्रैक्टिकली अगर आप देखो, और ना ही कोई सक्सेसफुल मैन। इनका पैरामीटर्स होता है कि आप कौन से पैरामीटर से आप उनको जज करोगे कि ये सक्सेसफुल है और ये फेलियर है। इट इज जस्ट अ परसेप्शन, नंबर 1. Number 2, what I observed is that since the topic's name is budget, Union Budget 2026, through which our Honorable Prime Minister Modi ji, who has been one of the dynamic Prime Minister our country has seen, has envisaged for a Viksit Bharat by 2047. I think 2047 is a big longer term they are given. Our country is, as we all know, in today's day, it is at the 4th paradigm. Okay, na? First comes USA, and then comes your European community, and then Japan, and then after that comes India. Insofar as the growth rate is concerned and the overall development is concerned. So when we talk of, carefully listen what I am saying here, some students are standing there at the back, and I think they are standing due to some reason. Please listen to me what I am saying something. See, insofar as these all areas are concerned, being an economist, my area of specialization is economics, and I am a student of economics. So I have been talking on behalf of that too much. That is another area. And the topic of your listening is also unit budget. So when we talk from an economics perspective, we must keep the country's growth first. Country's growth. And any country when it strives towards the growth or development of it has to take into confidence four important areas. These 4 important areas are: first is economic growth and or development. The second one is the unemployment rate of the country, the unemployment or the employment rate. What is the employment they are able to provide to the
The third one is price stability, यानी trade cycle, the ups and downs. अभी देखिए गैस का प्राइस बढ़ गया, ठीक है ना, तेल का प्राइस बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है. Today's date, we are not in isolation. No country is in isolation. After the 1993, India's, new economic policy started in the year 1993, where the then Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, used to be the Finance Minister under the Narasimha Rao government, and he introduced the new economic policies. And under the new economic policies, we all countries are bound to open up our economy. आज हमारा कंट्री जो है एक क्लोज इकोनॉमी नहीं है, it is totally open and all the countries of the world are open. And what I mean to say is that जब मैं open हो गया मैं बोल रहा हूँ तो हमारा कंट्री आइसोलेशन में नहीं है. अगर अमेरिका में कुछ एक्सीडेंट होती है, कुछ इंसिडेंट होता है तो the whole world shakes. आपने सुना होगा ट्रम्प जो है, डोनाल्ड ट्रम्प, the president of America, when he makes a small statement, उन्होंने ये कह दिया मान लो कि जो है मैं वॉर रोकने जा रहा हूँ. आप देखिए कंट्री पूरे वर्ल्ड का जो है स्टॉक मार्केट ये लग जाता है. वॉर होती है तो स्टॉक मार्केट गिरता है. वॉर मैं रोकने जा रहा हूँ बोलता है, स्टॉक मार्केट में सुधार आ जाती है. स्टॉक मार्केट ऑफ एनी कंट्री इज द इंडेक्स ऑफ दैट कंट्रीज ग्रोथ. ठीक है ना, स्टॉक मार्केट. तो स्टॉक मार्केट आप लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, हमें न्यूज देखते रहें. बचपन से आप लोगों को सिखाया होगा कि डे टू डे ट्रेंड को ध्यान रखने के लिए हमें क्या करनी है, वी हैव टू बी एब्रेस्ट विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन द होल वर्ल्ड. जब मैं होल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं कंट्री को सीमित नहीं हूँ. देखो यहाँ पर, ठीक है ना, होल वर्ल्ड की जब मैं बात कर रहा हूँ तो हमें इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स पे ध्यान देनी है बहुत सारा. इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स पे, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में क्यों कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि जितने भी आपका इंटरनेशनल जो होता है वो उसका इफेक्ट जो सीधे हमारे पड़ता है. जैसे अगर आपको देखना वॉर हो रही है, एक और पॉलिटिक्स चल रहा था रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो सेकेंड वॉर फिर यहाँ इफेक्ट हो गया ईरान और यूएस के बीच का. तो इसकी वजह से जो है देखिए प्राइस जो है बहुत ज्यादा कम आ गया. Price बढ़ने लगे हैं, गैस मिल रही है. So everything is so closely interrelated in today's day. We cannot isolate them. तो इन बातों को ध्यान में रखकर जो है अब गैस के लिए तो क्या करें हम, उसका विकल्प क्या करें. समझे ना, तो बहुत सारे आज चाइना जो है हमसे बहुत आगे है. चाइना हमसे इतना आगे है. एक समय हुआ करता था हम दोनों एक बाजार में थे, जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था तो चाइना नाम भी हमारे कंट्री से ही था. लेकिन आज चाइना जो है इतने ऊपर आ गया है, इतने ऊपर आ गया है कि हमें सोचने में मजबूर कर रहे हैं. हम मजबूर हो रहे हैं कि क्यों वो इतने ऊपर आ रहा है और क्यों ऊपर नहीं आ रहा है. और इसी यहीं पर जो है मोदी जी की जीत होगी. मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत ही एक बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग सो नाइस. द होल टीम, देयर वर्क जो है इतना ब्यूटीफुल हो रहा है कि जो है हमारे कंट्री को इसी के चलते जो है आजकल का जो रेवोल्यूशन जो देखने को मिल रहा है पूरा एजुकेशन सिस्टम में, जो एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आज आपको देखने को मिल रहा है, वो यही कर रहे हैं. क्या है, हम 2020 की गवर्नमेंट पॉलिसीज के तहत जो है बहुत ज्यादा चेंजेस ला रहे हैं. एंड नॉट ओनली दैट, वी हैव स्टार्टेड स्किल इंडिया प्रोग्राम्स, वी हैव स्टार्टेड इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन सेल्फ, वी आर स्टार्टिंग नाउ. ठीक है ना, AICT का प्रोग्राम्स पहले से आगे जो है स्टार्टअप की प्रोग्राम्स. ऑलमोस्ट ऑल द कॉलेजेस ऑफ आवर कंट्री आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी to inculcate the ideas to the students and they bring some innovations. समझे ना, और इस innovations के थ्रू जो है हम जो है उसको प्रोटोटाइप बनाएंगे, प्रोटोटाइप के लिए स्टार्टअप करेंगे. और स्टार्टअप के प्रोग्राम्स आप आए दिन देखते हैं, देखिए यूट्यूब वगैरह पर देखते हैं, चाइनीज का जो है इतना ब्यूटीफुल स्टार्टअप कर रखे हैं वो जो है, और वो इतना हर घर में जो है चाइनीज प्रोडक्ट है, हर कंट्री में चाइनीज प्रोडक्ट है. और आज हम जो है हम यही चाहते हैं,
हमारा गवर्नमेंट यही चाहते हैं कि हम पूरे वर्ल्ड में जो है हमारे प्रोड्यूस जाए। अगर रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा अमेरिकन गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाया था, टैरिफ की वजह से जो है इमीडिएट हमारे जो कम्युनिटीज जो अमेरिका में जा रहा था, अराउंड $18 बिलियन से ज्यादा जो एक्सपोर्ट है वो हम करते हैं अमेरिका को अलोन। तो वहां पर हमारा कम्युनिटीज जब गया नहीं तो जो है हमारे कंट्री में इमीडिएट जो है प्राइसेस गिरे। अभी रिसेंटली जो प्राइस गिरता हुआ नजर आया है आप लोगों को, उसका मेन रीजन यही है टैरिफ की वजह से जो है हाई टैरिफ की वजह से 50% हो गया था और जो 5% का उनका सेलेक्ट चल रहा था। अगर वो 5% तो प्रॉब्लम होती है, नॉट ओनली हमें उनको प्रॉब्लम होता, ठीक है ना। तो जो है इसके ये चल तो आप लोगों को चाहिए कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को ध्यान से समझे, ध्यान से सुनिए। आजकल सिर्फ जो है आपका न्यूज देखने से काम नहीं चलेगा, यूट्यूब भी देखिएगा। आज हम ऐसे दौर में हैं सोशल मीडिया के कि हम अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते। अगर आपने सोशल मीडिया से आइसोलेट कर दिया तो इसका मतलब आपका डिक्लाइन हो रहा है, समझे ना। मेरा कल ही एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी मेरे क्लास में, वो स्टूडेंट ये कह रही थी, मैंने कहा कि जो नोट्स में देता हूँ आप लोगों को फोन के जरिए, क्योंकि इस फोन को जो है हम जो माध्यम बना के रखते हैं हमारे बनाने पे इसको जो है हमने टैबलेट के रूप में रखा है। तो हम ये कहते हैं सुनानी करेंगे कोरोना के बाद से आज बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है आज तो जब हम इससे एजुकेशन करवाते हैं तो हम उनसे ये कहते हैं कि आपको सोशल मीडिया से जो है एकदम एड्रेस नहीं है, आपको नॉलेज काफी मिलेगा। आप घर से बाहर निकलिए, आप मार्केट को समझिए, मार्केट को जो है इकोनॉमिक्स के बच्चे ही, कॉमर्स के बच्चे ही सभी को समझना है, क्योंकि वो एजुकेशन का दौर खत्म हो गया कि जो है सिर्फ इंग्लिश वाले सिर्फ टीचर्स बनते थे या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज में चले जाते थे, इकोनॉमिक्स वाले बिजनेस में चले जाते थे। वो दौर नहीं है। आज के दौर में जो है इवन एक हिस्ट्री के बच्चे जो है वो बिजनेसमैन बन सकता है, इंग्लिश का बच्चा बिजनेसमैन बन सकता है। तो क्या है हम लोग ट्रांसलेशन का एग्जामिनेशन करवाते हैं ऐसे तो जॉब के लिए भी जो जहाँ पर स्पेशलाइजेशन काम नहीं आती है हर बच्चे हर ब्रांच के बच्चे लिखते हैं। So the whole of the education system is getting reoriented. Today we are a market-oriented economy. मैं ये कहूँगा economics जो है और commerce और plus management era चल रहा है आज हम management की era में हैं। तो आप सबको जो है बदलती हुई परिवेश के साथ हमें चलने की है और आपको एकदम एड्रेस करना है। न्यूज में रहिए, एकदम न्यूज पढ़िए। कल मोदी जी ने क्या कहा, कल ट्रम्प ने क्या कहा, कल जो है आपका जो पुतिन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। सारे कंट्रीज के हेड का नाम पता होना चाहिए, सारे कंट्रीज क्या कर रहा है, ये सब देखते रहेंगे तो जाने अनजाने में आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। जाने अनजाने नॉलेज बढ़ाने की उद्देश्य से मत बैठ कर देखिए, तो आगे जाने से बस उस इकोसिस्टम के अंदर घुसिए, उस इकोसिस्टम के अंदर घुसिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के नॉलेज के बहुत समय हमारे पास काफी है, मैंने बात किया यहाँ पर बैठकर we are not time why we are having lot of time how is expected to arrive at 1 p.m. and then you know all the participants also have finished their this presentation and that we are having enough time 5 minutes to go तो यहाँ मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात, हमारा जो इसमें कोई सुन रहा था क्या, ध्यान सुनिए, सुनने वाले बताएंगे किस एरिया में बताना क्या बता सकते हैं। यू आर स्टूडेंट ऑफ जयराम कॉलेज, बताइए मैं क्या कह रहा था, व्याकरण क्या कह रहा था। हाँ सुनिए, ध्यान सुनिए। आज का दौर आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले गोल्ड का प्राइस 10 ग्राम 1,84,000 1,04,000 रुपीज को टच करके नीचे आ गया। देखा ना आपने गोल्ड, सिल्वर का रेट भी देखिए आपने ऐसे ही 4,25,000 में चला गया पर किलो। अभी आपको ये जाननी है कि सोना आप खरीदेंगे या नहीं, आपको ये जानना है कि सिल्वर खरीदूं मैं कि नहीं, आपको ये जानना है कि कॉपर खरीदूं क्या कि नहीं खरीदूं। ये सारी चीजों का बारे में आपको आइडिया तभी मिलेगा जब आप न्यूज देखते रहेंगे हर दिन।
आपका न्यूज नहीं देखना एक बंद कमरे में बैठने जैसा है बस। किसी किस्म का नॉलेज में एनहेंसमेंट नहीं होगा और आप जो है एकदम अज्ञान हो जाएंगे, अज्ञानी बन जाएंगे। अपना नॉलेज को बढ़ाइए, हेल्थ को बढ़ाइए। हेल्थ के बिना नॉलेज नहीं, नॉलेज के बिना हेल्थ नहीं, एंड दोनों के बिना वेल्थ नहीं। समझे ना? तो फर्स्ट priority जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन हेल्थ एंड वेल्थ। मैं कहने क्या चाह रहा हूँ आपको, लीजिए एक लाइन खत्म करके मैं जा रहा हूँ। ये सोने की जो बात कर रहे हैं, आपको आज सोना बिक्री करना है, दुकान पे जाइए, सोना जो है आपको बेचने से डर लगेगा। क्यों? पिछले कुछ दिनों में जो है काफी उतार चढ़ाव हो रही है। आज मैंने जाकर बेच दिया तो कल देखा है 10 ग्राम अभी 150 के आसपास है, 1,10,000 के आसपास है प्रति 10 ग्राम। अभी मैं बेचते हो गया 1,70,000 का। समझे ना? तो ये वाली जो है सिचुएशन अभी चल रही है। और सुनार वाले जो है सोने के जो कार्यक्रम है, ये भी परेशान पड़े हैं। ये गवर्नमेंट से ये लगा रहा है कि जो है सोने का दाम कम करवाइए, लेकिन गवर्नमेंट अपने आप से काम करके करवा सकता है। ये एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म काम कर रहा है डिमांड एंड सप्लाई का, जो किसी के हाथ में नहीं है। ऑटोमेटिक मैकेनिज्म, एक मछली वाली जो है कम मछली लाकर रखी है बेचने के लिए और ज्यादा लोग रहे हैं, तो नेचुरली मछली वाले का हिसाब से प्राइस नहीं होगा वहां पर प्राइस फिक्स होगा डिमांड और सप्लाई के। समझे ना? कम मछली है तो ज्यादा लोग आ रहे हैं तो ज्यादा दाम हो जाएगा। वो कितने तक जाएगा पता नहीं, जो आदमी ज्यादा बोलने वाला है, बोलने लगाने वाला तो इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक मैकेनिज्म मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई करना। आज वही हो रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में वॉर की वजह से। देखो इंटरनेशनली जो है दुनिया जो दो भागों में बढ़ रहा है, दो भागों में बढ़ रहा है। अभी जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है वो एकदम नया सिरा से बन रहा है। एक ब्रिक कंट्रीज जो हमारे कंट्रीज के साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इनका नाम में टॉपिक मिलाकर जो है इनिशियल वर्ड मिलाकर ब्रिक्स बोलते हैं। और दूसरा नेशन वर्ल्ड अमेरिका एंड नेटो अलायंस। अब ये दोनों जो है बढ़ रहे हैं और दो ग्रुप बन रहा है। तो ये आपको देखनी है इस वॉर से इस तरह का जो ग्रुप बन रहा है, ग्रुप सब हो रही है, उस ग्रुप के चलते ही जो है वॉर चल रहा है। तो बताइए मैं देखिए वहां से फ्लाइट उड़ नहीं पा रहा है मिडिल ईस्ट कंट्री से, एकदम बहुत सारे फ्लाइट रद्द हो रखा है। अब इसके चलते जो है जो दुबई है, सऊदी अरेबिया है, मिडिल ईस्ट कंट्री जो बहुत ही प्रॉस्परस कंट्री कहा जाता है, इनका हाल खराब है। ये लोग 30% सोना को डिस्काउंटेड रेट में बेच रहा है। सोना अगर 100 रुपया है तो 20 रुपया कम करके बेच रहा है। वो कह रहा है कि लेकर जाओ, देने के लिए तैयार है सोना, लेकिन मजदूरों को बेच नहीं पा रहा है। क्यों बेच नहीं पा रहा है? क्योंकि खरीदार के लिए बंद है, किसको बेचे, कहां जाकर बेचे। नंबर 1 आपको ध्यान से सुनेगा, जो बच्चे यहाँ बैठकर ध्यान से सुन रहे हैं ना, कुछ बच्चे कैंटीन में रहते हैं तो वही बच्चे आगे जाते हैं। जब बात करने का मौका मिलेगा सही बच्चों जो आते हैं ना कॉपी जाते हैं, उन बच्चों को डिमोट नहीं कर रहा, लेकिन ये जो बैठ जो बात करके बच्चों लड़ा रहे हैं ना, ऐसे बच्चों को बिल्कुल लाइक नहीं करता। जहाँ पर जो बातचीत हो रही है ध्यान से सुनिए, आपको जरूर बोर लगेगा लेकिन ध्यान से सुनना जरूरी है। वहां पर इतने दूर आए हैं तो सुनिए। ये जो है जो है क्या प्रसाद बढ़ना है बस। तो सोना जो है जल्दी बेच नहीं पाता है, जब दिल हुआ उसको जल्दी नहीं बेच पाता आज के माहौल में, और आने वाले माहौल दिनों में जो है और मुश्किल हो जाएगा। दूसरे मेटलों की भी बात ऐसी है। तो आप बताइए सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा है? पैसे के रूप में अगर आपको रखनी है, आप किसी को नहीं पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्सली आपसे बात कर रहा हूँ। कौन सा है सबसे बेस्ट विकल्प? सबसे बेस्ट विकल्प है बिटकॉइन। क्या है? बिटकॉइन में जो है जहां पर उसके इन्वेस्ट करिए, ट्रेड करिए, उस सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश करिए। ये फ्यूचर है हमारा। जैसे हम डिजिटलाइजेशन की ओर कदम रख चुके हैं, आज एक डाक काटने वाला आदमी डाक बेचने के बाद जो है क्यूआर कोड दिखाता है पैसे के लिए, हम स्कैन करके पेमेंट करते हैं। वी आर गेटिंग डिजिटल पेमेंट। तो आज इंडिया जो है डिजिटली जो है बहुत
बढ़ता है, ठीक है ना। और प्लस डिजिटलाइजेशन तो हो गया, पहले कंप्यूटराइजेशन हुआ, कंप्यूटर हमारे लिए आज ऑर्डिनरी हो गया, उसके बाद जो डिजिटलाइजेशन हो गया, डिजिटल मनी हो गई है, उसके बाद डिजिटल माध्यम क्या पहुंच गया, दैट इज क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेरा यूट्यूब में 146 वीडियोस है, यूट्यूब में 146 वीडियोस है मेरा। हम लोग एनजीओ चलाते हैं, एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, और उस एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है क्रूसेडर्स अगेंस्ट एनिमल सफरिंग, कैश बोलते हैं शॉर्ट में। आप अपने मोबाइल में गूगल में मार कर देखो, CAAS इन एडवांस में मार के देखिए, हमारा सारा मिलेगा आपको काम, समझे ना। तो हमें टेक्नोलॉजी का हेल्प लेनी है, अगर आगे बढ़नी है तो वी हैव टू अटेन टू द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से जितने दूर भागते रहेंगे वो आदमी आज की दुनिया में उतना ही पिछड़ जाएगा। टैबलेट को रखिए, अच्छा स्मार्टफोन रखिए, मेरा मैक्सिमम काम स्मार्टफोन से होता है। थोड़ा दाम वाला फोन है, लेकिन मैं इसमें MS Word रखा हूँ, MS Word जहाँ भी मौका मिलता है टाइपिंग कर लेता हूँ। अभी मुझे मैं क्लास ले रहा था, मुझे 10 बजे जो है मुझे कहा गया कि वहाँ पर एक ट्यूटर के साथ जाइए, मैं 5 मिनट सीधे भाग के आ गया। ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं कि अब चलो जाना बात करनी है वगैरह, नो। लेकिन फिर भी मैं आगे क्या किया, AI से मांग लिया सीधा, एक सबसे बेस्ट AI कौन सा है अभी आज के डेट में, AI कौन सा है, कौन सा है, वो अनादित्य चिराग कहते हैं, तो अनादित्य चिराग, ये देखिए इससे बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत। पता है आप लोगों को, तो नोट डुप्लीकेट नोट बना दिया था इस बंदे ने कल, गिरफ्तार हो गया। इतना वो नोट 500 रुपए का वो चलाने लगे, फिर नोट जो है बड़े बड़े नोटों के साथ मिलाकर काफी महीने से चला रहे थे इनका गैंग। फिर एक जगह जो 2 करोड़ रुपए ले जाकर यही बनाया हुआ क्या AI का सहारा से उसने सारा स्टडी कर लिया, डुप्लीकेशन किया, प्रिंटिंग किया और फिर जो है चलाने लगे, समझे ना। तो जो है ये तो आंतरिक वर्क है, डिस्ट्रक्टिव वर्क नहीं होता है, एग्जाम जो है प्रोडक्टिव वर्क में चाहिए। किसी भी चीजों से सारे जो है आपको जो है थोड़ा कबाड़ा भी मिलेगा और अच्छे काम की मिलेगा, अच्छे काम की चीज को एम्ब्रेस करिए और यूज करिए। तो ये जो एनजीओ है हमारा, ये एनिमल वेलफेयर पे काम करता है। मेरे का नाम ये है, मेरे का नाम सेंट्रल मिनिस्टर, उनका आशीर्वाद रहा है हमारे ऊपर। पहले हम उनका देखते थे और फिर बाद में हमने अपना नाम चेंज कर दिया, पीपल फॉर एनिमल था वो, और उसका हमने क्रूसेडर्स अगेंस्ट एनिमल सफरिंग का नाम कर दिया, कैश बोलते हैं, और वो चलाते हैं। और मैं AI का हेल्प से एक यूट्यूबर भी हूँ, मैं एक प्रोफेसर के अलावा एक यूट्यूबर भी हूँ, मेरा 85,000 व्यूज है, समझे ना। और उसके अभी हमारे जर्नलिस्ट साहब हम बैठे हैं हमारा आइलैंड न्यूज का, ठीक है ना, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और मैं कह रहा हूँ आप लोग को, जो बदलती हुई परिवेश है, we have to embrace this all। बता रहा हूँ, आज चाइना क्यों इतना आगे है, वो जस्ट पेपर वर्क नहीं करते हैं, वो काम करते हैं, वो लिटरली काम करते हैं। वो पढ़ाई अगर एक लिमिट तक करो, लेकिन काम करो। आप क्या करते हो, आप ये डिग्री ले लिया, डिग्री ले रहा, आपको काम नहीं सीखा। तो हमारे गवर्नमेंट ने इस ओल्ड मॉडर्न सिस्टम को समझा और उनको सारे उस एजुकेशन सिस्टम को समझकर वो चेंज कर रहे हैं, और उससे जो है एक वर्नाकुलर एंड यू नो एक प्रोफेशनल किस्म का एजुकेशन सिस्टम को लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि इस तरह के हमारे बच्चों में आए और वो टैलेंटेड बने। आप कुछ मत करिए, एक वेल्डर बन जाओ IIT में जाकर, वो ट्रेनिंग ले लो और वेल्डर बन जाइए, आप परफेक्ट वेल्डर बनते हैं, समझो आप कमाने लग जाएंगे। वो दौर गया है कि टॉपर बनो और टॉपर बनकर पढ़ाकू बन के आप थोड़ी की नाक की तरह बस ऐसे बात लो और कुछ ना सीखे, बस वो टॉपर अगर बच्चा कुछ नहीं आता, वो दुनिया नहीं है अभी। हमें और ऑर्डर होना है, क्या होना है, और अगर आप कुछ ले रहे हैं तो आपका एरिया ऑफ हॉबी जो भी आपका एरिया ऑफ अप्रोच बेस्ट कौन सा है, आपका अप्रोच तलाशिए, जो भी आपको बार बार वो कहता है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करना चाहता हूँ, तो वही करिए। अंदर सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर या जो है दूसरे को जॉब तक ही सीमित लगा करके ना हमारा जॉब है। आज इंजीनियर अच्छे अच्छे इंजीनियर जो अपना पढ़ाई खत्म करके वो क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट एरिया में आ रहे हैं, MBA फाइनेंस कर लिया है, LLB कर लिया और
गो लिमिटेड एप्लीकेशन का एजुकेशन करके जो है बहुत बड़े कंपनीज में जो है सीईओ के रूप में सब चल जाते हैं, नॉन पहुंच जाते हैं, सीईओ बन जाते हैं। वो एक्सपर्टाइज एंड योर पर्सनल टैलेंट मैटर्स। एक्सपर्टाइज एंड योर पर्सनल टैलेंट, आपके अंदर एक्सपर्टाइज है, आप एक्सपर्ट हैं, आप स्मार्ट हैं। मैं टैलेंटेड नहीं बोलूंगा, पढ़े लिखे बच्चे टैलेंटेड को लेके आएंगे, स्मार्ट होना अलग बात है। आप अगर स्मार्ट हैं, आप कुछ कर गुजरने में बिलीव करते हैं, कंट्रोल है, समझे ना? तो मेरा एरिया ऑफ अप्रोच जो है हमेशा इसी तरफ जाता रहा, किसी तरफ नेशनल की तरफ। तो मेरा बिजनेस भी जो है वो बहुत ज्यादा एंगल में घुसी रहती है। तो हम लोगों ने शुरू में जो है क्या किया, 3-4 पाने लगा, फिर सभी के साथ साथ जो है हमारे एरिया में किसी पहचान हो गया और उनके पास जो है हम क्या करते हैं, बहुत सारे काम ऐसे किए और फिर हमने अपना एनजीओ बनाया। हमने एनजीओ बनाया और ये जो है स्टार्टअप के लिए बहुत बढ़िया एरिया है इंटर्नशिप के। तो हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में हमारे कॉलेज में जो है आईएफसी का प्रोग्राम और आईएफसी का सेल बन रहा है, अभी फटाफट बनाया गया है वहाँ पर। और इस बात को लेकर जो है हम ये देखेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि हमारे बच्चे जो है मैक्सिमम फायदा उठाए। हमारे जो अंडमान के बच्चे हैं वो दूसरे हमारे कंट्री की बात जो स्टेट्स है ना, स्टेट्स के बच्चों की कंपैरिजन में बहुत आगे हैं। उसका रीजंस है, काफी रीजंस है, मैंने इन सालों में आइडेंटिफाई किया ये सारी चीजें। रीजन मेन रीजन क्या है, वी आर इन एन इकोसिस्टम लाइक मेरी इंडिया। यहाँ पर तेलुगु बोलने वाला भी है, मलयालम बोलने वाला भी है, मैं हिंदी बात कर रहा हूँ, इंग्लिश बात कर रहा हूँ, मैं मलयालम की बात करूँगा, मैं बंगाली की बात कर रहा हूँ, चाइनीज में बात करूँ, गुजरात मैं तमिल हूँ, मेरा एजुकेशन तो ऐसे। तो इस तरह का ऑर्गन दो बिहार में पार्ट बट दैट पार्ट इज ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल डिस्टेंस जो है समझे ना। आज हमारे पास जो है देखिए बहुत बढ़िया जो है इंटरनेट केबल है, वायरलेस सिस्टम है, हम क्या नहीं कर सकते जो नहीं कर सकते हैं। जब मैंने आपको यहाँ बताया कि मैं 146 वीडियो बना चुका हूँ, मेरा लिंक अगर आपको चाहे तो आप सुन जाइए, CAAS इन अंडमान करके मारिए, उसी में आपको मेरा वेबसाइट मिल जाएगा और यूट्यूब पे जा सकते हैं और आपको नजर आएगा कितना प्रैक्टिकली हम काम करते हैं। मैं जो प्रोफेसर हूँ बोल कर जाए जैसे ऐसे बाकी लोगों को बोलकर ऐसे दूसरा हुआ ऐसे नहीं हूँ। मैं आज भी जो काम करता हूँ, मेरे पास एक 30 बीघा जमीन है, उस जमीन को हम एनिमल टेरिटरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हमारा डिग्रीपुर में जो है 20-25 गाय बैलों को जो है ना बुचरी के लिए स्लॉटर के लिए लेकर जा रहे थे, कोस्ट गार्ड ने पकड़ा, कोस्ट गार्ड ने पुलिस को हैंड ओवर किया, पुलिस ने कोर्ट में दे दिया, कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि हमारा एनजीओ दिया जाए, तो हमको गाय का नंबर एनजीओ में आ गया और हमारे एनिमल शेल्टर में रह रहे हैं। तो वैसे जो है आप हमारे को 60 रुपए हैं और ये 20 मिलियन, तो ये सबको हम घर लेके रखेंगे। तो ये एक एरिया होगा, हमारा हॉबी से निकला हुआ एक एरिया होगा जिसको हमने पहचाना और उसको हम डेवलप कर रहे हैं। अगर उसको कैसे डेवलप करना है, एनिमल्स भी रखना है वहाँ पर और प्लस जो है वहाँ रहने के लिए टूरिस्ट लोग भी आकर रह सकते हैं। कैसे, वो जो है वॉलंटियर्स होंगे, एनिमल तो वॉलंटियर होंगे बना रहे हैं, समझे ना। तो इस तरह जो है आप बिजनेस में कुछ शेप दे सकते हैं, कुछ शेप देकर जो है इनोवेटिव आइडियाज ला सकते हैं और यही चाहते हैं हमारे गवर्नमेंट जो है ना, यही करते हैं। सोचो बैठ के अंडमान में क्या होगा क्या नहीं हो सकता है बिजनेस के एंगल, तो सोचो और उसको आइडिया सुने ना। तो आज के टॉपिक आपको जो बात करने के लिए क्या दिया गया था, उसमें मैंने ये चीज नोट किया कि हमारे एक डिपार्टमेंट ने जो है जो मेन एरिया है उसको रीच हुआ, समझे ना। हमारी बातचीत हो रही है, अभी आप जो इसमें 3 बच्चे सेलेक्ट होकर न्यू दिल्ली जाएंगे तो वहां पर मैसेज करने का समय आएगा, तो आप लोग जो बात करते हैं नो डाउट यू वे ऑफ मैसेज and plus your other areas are very excellent. ठीक है ना, कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा था बच्चों को जो है it is very excellent. मैं अपने स्टूडेंट लाइफ के लिए इतना बात नहीं कर रहा हूँ, पर बात कर रहा हूँ, ये तो मैं बात कर सीखा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं तो एक्सपीरियंस 30 साल से पढ़ा रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है, आप लोग जिस टॉपिक में बात करनी होती है ना 75% एरिया उस टॉपिक में बात करिए, समझे ना। अभी लॉ का एरियाज को बची है, she presented very nicely, ठीक है ना, you presented very nicely and 2 more others also presented. Altogether you know we have got only 5 or 6 students who are compatible enough and those who are not competent, and out of them only they will be selected, ठीक है ना। we have already done that. तो 2 बच्चे तो कोई बात नहीं होगा। तो ये टीम इस तरह का टीम मिले ना, बर्थडे को मेन एरिया में क्रक्स जो है ना वो बोलना जरूरी है।
बजट का डेफिनेशन कहीं पे भी अगर आप आपको उस एरिया को डिफाइन करके पहले तो ना बजट क्या है, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर, बस हो गया आंसर। बजट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर फॉर तो ना तीसरा छोटा से छोटा मारिया आंसर मिल जाएगा। दैट इक्विटी में सिर्फ ये बात है कि आई एम प्रेजेंट seminar or type of you're going to be there doing on towards the topic that you will tomorrow and plus give me a speech, prepare a speech for me emphasizing on the budget area around 35%. 35% budget area पे emphasize करके 5-10 minutes जो minutes से इतना speech दीजिए। आप that tomorrow immediate आ जाएगा, आपका speech ready होगा, समझे ना? और आपको वैसे भी बात करनी तो ये बजट की एक बात करिए। बजट में जो है मेन इकोनॉमिक्स का जो एंगल है, इकोनॉमिक्स जो एंगल है वो यही है, मेन क्या इकोनॉमिक ग्रोथ, आपका प्राइस स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड देन पॉवर्टी एजुकेशन, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये पांच मेन एरिया है जो कोई भी गवर्नमेंट जो है हमेशा बजट में इसका ध्यान इसी में रहता है। बस प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस ऊपर या नीचे ना, बस इसको कंट्रोल करो। प्राइस ऊपर हो गया इन्फ्लेशन है वो मार जाएगा, प्राइस नीचे हो गया इन्फ्लेशन है और डिप्रेशन हो जाएगा, रिसेशन बनी, ठीक है ना? तो ऐसे आप लोग जो है कर जाइए और आप लोगों का आशीर्वाद है आपके साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द टॉक एंड सी यू ऑल। जो बातें बोले आप सभी पार्टिसिपेंट्स बात कीजिएगा, ठीक है? जब तक आप इस पॉइंट पर तब तक अपना लाइफ में आने गए जैसे आज जो पार्टिसिपेंट यहाँ पर के सामने जो पॉइंट बोला है और इस वजह ठीक है, इसके बारे में आपको बोलना था। आप एक बार ध्यान देंगे, नेक्स्ट टाइम जब इंडिविजुअल प्रोजेक्ट करेंगे तब उधर को हमारा कुछ जाएगा हो उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर राजनीति को यहाँ आए थे, आने सर का भी बहुत बड़ा अनुभव है। गवर्नमेंट को देश की बात है, सीनियर अफसर है, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा आप बच्चों को आगे बेहतर कैसा कर सके यहाँ पर आपका मार्गदर्शन। अच्छा बताया बहुत कुछ है, बहुत कुछ पॉइंट मुझे जैसा सभी ने ये बताया कि जो स्टार्टअप है सबको कैसा मैन्युफैक्चरिंग कैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना है, सभी सेक्टर को आगे बढ़ना है। ऐसे हमें एकेडमिक से स्किलफुल होना है, ये है हमारा सबसे बड़ा जो उद्देश्य है। विकसित भारत 2047 में हमारा टारगेट ये है कि हम विकसित भारत, तो विकसित भारत बनने के लिए क्या है, जैसा पुलिस साहब ने बताया कि चाइना हमसे बहुत आगे है, क्यों आगे है, तो स्किल को पहचाना, हर सेक्टर में स्किल को पहचाना और स्किल का ट्रेनिंग किया है। और भारत सरकार की स्किल को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, अभी एजुकेशन पॉलिसी में उसको दिया है, ऐसा स्किल को बच्चों को हर यूथ को स्किल देना है कि प्रधानमंत्री का जो मिशन है 2047 में विकसित भारत बना के कैसे ही डिपेंड करना है आज के नई जनरेशन। क्या सबसे बिगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड जापान वगैरह सब अभी देश तो वहाँ पे अभी लोग नहीं हैं ताकि वो प्रोडक्शन करें, इनोवेशन करें और स्टार्टअप्स को आगे हैं। तो हमारा जो यूथ के ऊपर में ही डिपेंड है कि हमें आगे बढ़ना है, हमारे स्किल को बढ़ना है, हमारे इकोसिस्टम को स्टार्टअप इकोसिस्टम बना रहे हैं। हमारे हैदराबाद में हमने मालूम होगा 96 स्टार्टअप रजिस्टर किया। 2018 में जब हमने जो स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया तो हमने सोचा था कि हैदराबाद में इतना स्टार्टअप आए। 96 आज के दिन में 96 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेकग्नाइज्ड स्टार्टअप्स बहुत सारे एप्स में है, छोटे सोशल मीडिया में है, लीडरशिप
आउटलेट जो पानी है उससे कैसा उसको यूटिलाइज किया जाएगा, वैसा एक स्टार्टअप है हमारे पास जो अभी दिल्ली में भी जाकर प्रेजेंट किया था। एग्रीकल्चर में है, फिशरीज पेपर, इसमें भी स्टार्टअप हमारा रजिस्टर है। टोटल 96 स्टार्टअप्स हैं और करीबन 2000 से 3000 तक से भी रजिस्टर्ड है अलग अलग हैंडीक्राफ्ट्स में, टूरिज्म सेक्टर में, फिशरी सेक्टर में। तो हमारे कमान में बहुत सारा स्कोप है स्टार्टअप के लिए और नई इनोवेटिव आइडियाज के लिए। बस अभी सेक्टर्स में हम यहाँ पे डिपार्टमेंट में 40 साल से हूँ, तो हम लोग 86 में जब आए थे कुछ टाइम में सिनेरियो अलग, कुछ टाइम यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था। 2000 के बाद पेपर इंडस्ट्री चला गया क्योंकि उसको पूरा सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया बंद कर दिया, जो बहुत जरूरी था, अंडमान के लिए बहुत जरूरी था क्योंकि क्लियर कटिंग हो रहा था, यहाँ से पेपर जाता था, इससे हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा। अंडमान का जो आज टूरिस्ट प्रमोट होने का रीजन भी हमारा फॉरेस्ट को बचाया है, वो एक विषय था। उसके बाद आया 2000 के बाद आया हमारे टूरिज्म सेक्टर को, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया। अभी भी बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना है। प्रोजेक्ट आ रहा है, आपको पता होगा, देखा होगा प्रोजेक्ट आ रहा है जो एक बहुत प्रोमिनेंट चीज है अंडमान के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। उसके अलावा फिशरी सेक्टर में हमारा बहुत सारा स्कोप है। उसके लिए मत्स्य संपदा स्कीम, जिसके अंतर्गत बहुत सारे स्कीम के अंतर्गत इंसेंटिव दिया जाता है ताकि फिशरी सेक्टर को आगे बढ़ाया, क्योंकि यहाँ पे जो फिश है वो नेचुरली डेथ हो जाती है, क्या एक्सप्लॉयटेशन हमारा नहीं हो पा रहा है। नॉटिकल माइल्स का जो इंडिया में फिशिंग है वो होता है, लेकिन उससे आगे का जो फिशिंग है वो नहीं होता है, जो डीप सी फिशिंग होना चाहिए। लेकिन उसके लिए बहुत सारा स्कीम्स मत्स्य संपदा स्कीम में आया हुआ है, उसमें उसका बेनिफिट हमारा एक जनरेशन ले सकता है। दूसरा टूरिज्म का तो मैंने बता दिया है, बहुत सारा सी फीचर्स को हम डेवलप कर रहे हैं, 11 आइलैंड्स को अभी डेवलप कर रहे हैं, पोटेंशियल बहुत है वहाँ पे, रिसोर्स हाई वैल्यू, हमने हर कैटेगरी के टूरिस्ट को कैटर करना, हाई वैल्यू हाई वैल्यू लो वॉल्यूम, यानी 5 स्टार होटल्स भी हमारे ऑल आइलैंड्स में भी आ रहा है, लॉन्ग आइलैंड में भी आ रहा है, बाकी जो आइलैंड्स में बहुत सारा स्कीम्स हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन बना रहा है। तो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट मार्केटिंग में भी सपोर्ट कर रहा है, हमारे सामने ही सारे इंडिया में हमारा चेन्नई में है, दिल्ली में इसका ऑपरेट भी करता है, ताकि कोई भी जो छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप, यहाँ पे बहुत सारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो छोटे छोटे जो महिलाएं छोटे छोटे कार्य करते हैं, घर में बैठे कोकोनट शेल का है जो पहले देश होता है, तो हमने 3-4 years में उसको डेवलप किया ताकि लोग अपना घर में बैठ के कोकोनट शेल का हैंडीक्राफ्ट बना करते हैं। उसके अलावा जितने स्कूल्स में है उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा योगदान देते हैं, तो और मनरेगा स्कीम है जो अभी रामजी में ट्रांसफॉर्म किया, उसमें भी बहुत सारा सोशल जो विलेज के हर विलेज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आप से सब कॉन्टैक्ट आने से हर विलेज में आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको रिलायबल मार्केटिंग एंगेज हो रहा है। तो ये सारा जो भी आइलैंड्स है जहाँ पे मिलीपुर से लेकर नावल तक का हर आइलैंड में अपना अपना पोटेंशियल है। मिलीपुर में अच्छा करना है, यहाँ प्रोडक्टिव का काम करना है, हर सब एक्सपोर्ट करना है। तो लॉजिस्टिक आज इम्प्रूव हो रहा है, धीरे धीरे अगर पेट्रोल आ जाता है तो कम्युनिकेशन हमारा मिलीपुर तक का रोड तक का कम्युनिकेशन आ जाएगा। तो अंडमान भी देश के साथ में 2047 विकसित अंडमान में भी हमको विजन रखना चाहिए और आप लोग की जनरेशन आप लोग इसका उसको आगे बढ़ाना है। आप लोग को में ही हमारा अंडमान का भविष्य है, क्योंकि आज जैसा पिछले साल में बहुत सारा एक्सप्लेन किया कि कैसा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जब चेंज होता है, इकोनॉमी कैसा चेंज होता है, अभी तेल का प्राइसेस आ सकता है नहीं आ सकता है, ये सब इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एक बार चेंज हो रहा है। आज एक सिचुएशन है, कल दूसरा चेंज हो सकता है। हर कंट्रीज में युद्ध का ये है, वेपन्स प्रोडक्शन है, पेट्रोलियम का है, फार्मा इंडस्ट्री है, ये सब का भी अलग अलग सेक्टर्स में बहुत सारा स्कोप है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो इसके साथ में तमाम लोग जैसे आज तरह के हो रहे हैं जो पार्लियामेंट में जाए, तो
जल्दी जाए और अंडमान को बहुत बेहतर तरीके से पसंद करें, उनको भी आदरणीय मुख्यमंत्री के सामने अपना पसंद करने का मौका मिलेगा, तो उसको पसंद कीजिए और बताइए कि हमारा अंडमान में बहुत पीछे नहीं है, अंडमान के बच्चे में बहुत ही टैलेंट है। और जैसा मुझे सर ने बताया कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट हर लैंग्वेज का था वो सबसे बड़ा एक पॉजिटिव है। हमारे अंडमान के बच्चे कहीं भी जाते हैं, नॉर्थ में जाओ या साउथ में जाओ, कहीं भी जाओ, वो सक्सेसफुल हमेशा रहता है, बहुत इंटेंस है। तो बस और थैंक यू। तो हमारे डॉक्टर जो नेक्स्ट करने के लिए मुझे मौका दे ताकि आप मैं अपना थैंक यू। आईआईटी डेवलप के सिलसिले में बहुत सारे बात बताए, युवा वर्ग यहाँ पर बैठे, जरूर इस विषय में आप सोचेंगे। माई भारत हमारा काम ही आपका युवाओं का सर्वांगीण विकास के लिए आप कार्यक्रम करते रहते हैं और इस तरह के कार्यक्रम यूथ पार्लियामेंट है, क्विज कॉम्पिटिशन है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, कल्चरल एक्टिविटीज है, नेशनल यूथ फेस्टिवल, इस बार हमें काफी यहाँ के बच्चों को जो भेजा बाहर में, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए भाई भारत के साथ में, ताकि हमारा जो लक्ष्य है हमारे एलएमपी के साथ डेवलपमेंट में जो आपको पार्टिसिपेशन है, तो आपके माध्यम से हमें सपोर्ट करने का मौका मिलेगा। मैं अनंत सर को धन्यवाद देता हूँ कि आपको किसी बात समाज में हमारे साथ जुड़े हैं। और अब मैं आपको कहना चाहूँगा हर सब्जेक्ट जी को से तरफ आए और आप लोग एज एक्सपर्ट जजेस में जो व्यूज है बच्चे आगे कैसा करना है Joint Director and Coordinator Mangalam and faculty members from different college and participating. This is the stage. We should discuss about the budget that is given by Finance Minister Nirmala and all the participants who are given this but one thing we have to mind that is जो भी आपने बताया मैक्सिमम बजट का मेन 4 पॉइंट बोलने के लिए अभी देखिए ये जो बजट है दिस इज फर्स्ट एवर बजट हाईली अलॉटेड फंड टू एजुकेशन। एक सबसे पहले बजट है इतना फंड एजुकेशन के लिए अलॉट किया दैट इज 1,39 करोड़। इसका पहले जो भी बजट में इतना फंड एजुकेशन में अलॉट किया, लेकिन ये फर्स्ट टाइम एजुकेशन के लिए अलॉट होगा। तो जैसा फाइनेंस मिनिस्टर बजट करने के टाइम बोले थे कि दिस बजट इज बिलोंग्स टू यूथ डेवलपमेंट इन क्वेश्चन एंड क्यों ए बजट एजुकेशन में कितना अलॉटमेंट किया कि एजुकेशन होने के बाद दैट इज बच्चा को फुल नॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद नॉट ओनली फोकसिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट में फोकस नहीं करना और छोटे-छोटे की एंटरप्रेन्योरशिप में भी प्रोडक्ट जैसा हम लोग पढ़ाई करने के बाद हम लोग को मेन मोटिव क्या होगा कि एक जॉब, ऐसा नहीं होना। इसलिए एजुकेशन पॉलिसी में ये है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक पार्टिसिपेंट ने बड़े से बनाया जाता है का प्रोग्राम। दक्षिणा प्रोग्राम बनाए बाय गवर्नमेंट दैट इज फ्रॉम स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। आपका स्किल को पहले डेवलप करना, डेवलप करने के बाद आप खुद एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और ये बजट का मेन मोटिव यही है कि सेकंड एंटरप्रेन्योर की फंडिंग बजट में बहुत ज्यादा दिया है। आई थिंक एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए स्टार्टअप की है। बट ये बात भी नेक्स्ट जो भी पार्टिसिपेट करेंगे, जो नेशनल लेवल में जाएंगे, ये बात जरूर बताना जितना फंड एजुकेशन
is allowed to study for you only. Education discussion clear and startup शिक्षा fund is allowed. और ये काम not only the next year उस पे काम नहीं किया, इसमें ये काम किया 2047 का विशेष फंड। अभी का जो बजट है इसका मेन व्यू है हमारा इंडिपेंडेंस डे से कदर स्टार्ट किया बट नाउ वी आर इन 2022 अभी से पिछले बार हम लोग जस्ट 20 इयर्स ये 20 साल के अंदर हम लोग डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए बट इसका सारी चीज बजट में होता है this is the budget mainly focused on that is your शक्ति and budget का main motive था सबके साथ सबके ये बजट का main motive था हर एक पूरा हम लोग प्रिपेयर हैं और जस्ट अब नेक्स्ट लेवल पे जाके प्रेजेंट करने के बाद बजट का ये पूरा मोटिव और thank you for organizing this program. Thank you for giving me the opportunity. Thank you. बच्चों को मोटिवेशन के तौर पर आपका एक्सपीरियंस है धन्यवाद आपको। इसके बाद सब मैं आपको कहना चाहूँगा श्रीमती सरनाम जी सोशल एक्टिविस्ट है और हमारे साथ आज बाहर सब पब्लिक एफेयर्स के साथ एक एनजीओ के साथ जुड़िए मैं अपने काफी एक्सपीरियंस है सोशल सेक्टर में मोटिवेशनल सेक्टर में आपसे निवेदन करूंगा आज अवसर पर बच्चों में मार्गदर्शन जरूर दें आगे बेहतर कैसे हमारे राजनीतिक यंगस्टर्स और पहले तो आप अपने आप को जो है राउंड ऑफ लव क्या और शायद हमारे इसमें कोई द्वारा है आप अपने आप में आपको प्राउड होना चाहिए यहाँ का खाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है एक मंच को एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना ये पहला होना और काफी अच्छा जो है आपने कुछ हमारे जो मुझे लगता है वो मैं जरूर आपके साथ रखना चाहूँगी वो जो हमारे यहाँ रखा बतौर प्रवक्ता के बहुत सुंदर और उन्होंने नहीं रखा उसका भी आरोपी जो सत्ता बहुत ही सुंदर और मुझे ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने करनी नहीं उसका भी कुछ रीजन रहा होगा तो सबसे पहली चीज जो हमें ये देखना है अगर हम एक अपने आप में फ्रेंड लेते हैं और एक योजना बनाते हैं कि मैं यहाँ पे अपना योगदान दे वाली तो मसला क्या है कौन से ऐसे विषय वस्तु जो हमें नहीं देते हैं वो क्या है उस पर आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है ऐसा नहीं है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मैं यहाँ से बाहर जाने का किया वाला हूँ और मुझे जो है एक मुकाम मिल सकता है आपको वैसे भी मिलेगा नो डाउट और जब आप विषय वस्तु को देखते हैं तो बहुत डेप्थ पढ़ना होता है कि उसमें जो बिंदु दिए गए हैं वो हमसे क्या डिमांड करते हैं सभी ऐसे वक्ता आप सबने बहुत अच्छा जो है बखूबी दिखाया लेकिन उसमें कुछ बिंदु थे जो शायद आपने नोटिस कर दिया उसमें कुछ ऐसे तत्व थे जो हमसे हमारी सरकार चाहती है जब आप कहते हो अपने बारे में युवा शक्ति के बारे में और आपने ये भी कहा सबसे कि आप निर्माता प्रेजेंट के एक इतिहास रचने वाले है ना जब आप निर्माता के रूप में अपने आप को देख रहे हो तो अल्टीमेटली हमसे क्या डिमांड की जा रही है वो डिमांड करते हैं कि आपका सोच क्या है आप कैसे
You know, हम सब आगे ये हमें स्टेट ऑफ डेवलपमेंट और हम सब देख रहे हैं कि डेवलपमेंट तो आप क्या चाहते हो, क्या एलिमेंट होना चाहिए अगर आप डेवलप सर 8 लोग से सर से निवेदन करूंगा सर, आप हमारे जो यहाँ पर युवा बैठे हैं, आप मानव सिंह को भी एक मार्गदर्शन दें ताकि इनका व्यवहार जीवन में अपना जो व्यक्तित्व है उनका विकास सही ढंग से कर पाए। श्री रविंद्र और सर से निवेदन करूंगा सर हम पाए नमस्कार सभी को। हाँ, ध्यान से सुनिए। मैं धन्यवाद देता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को कि मुझे मौका दिया गया कुछ बताने के लिए, बोलने के लिए। वैसे मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जो कि अपने जीवन में अपने समझ से अपने बुद्धियों से सीखा हूँ वही आपसे थोड़ा शेयर करूँगा। ये बैनर के अंदर एक बहुत सुंदर शब्द लिखा है, लेकिन छोटा सा लिखा हुआ, छोटा लिखा क्या है? लीड द पाथ टू विकसित भारत। ये बहुत बड़ा शब्द है, लीड द पाथ टू विकसित भारत। यानी यहाँ जो लोग बैठे इनके पास एक बहुत 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 बड़ा अपॉर्चुनिटी है अपने भारत को विकसित करने के लिए। आपके साथ इस थोड़ा जो भी प्रोग्राम यहाँ हुआ ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है और इसमें हम अपने लाइफ अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन काल में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हम सबके पास है। तो मैं जैसा कि आर्ट ऑफ लिविंग से हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा बोलता हूँ कि ये श्री रविशंकर जी द्वारा बनाया हुआ एक वेरी वर्ल्ड फेमस NGO है जो जीवन जीने की कला सारे वर्ल्ड में सभी जगह सिखाते हैं। यहाँ भी हमारा यूनिट चलता है और बहुत सारे लोग अंडमान में लगभग मेरे अपने जानकार से मैं जब से जुड़ा हूँ तब से मैं लगभग 6-7 हजार लोगों को अंडमान में एक जीवन जीने की कला सिखाया हूँ। तो विकसित भारत यानी विकसित भारत अगर हमें तैयार करना है तो उसके पहले हमें एक और चीज ध्यान देना है कि हमें स्वस्थ भारत भी होना है। और स्वस्थ भारत में स्वस्थ भारत विकसित भारत यानी स्वस्थ भारत। तो स्वस्थ भारत अगर हम हैं तो विकसित भी हम होंगे। इसलिए जीवन जीने की कला के माध्यम से हम लोगों को अपने कैसे अपने हेल्थ के बारे में और मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ ये दोनों हम कैसे अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसलिए आप सबको मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग इस हमारे साथ जुड़िए और कोशिश करें। 4-5 दिन का क्लासेस होता है, 2 घंटे आपको आना होता है। और अभी हम क्या करते हैं, अगर हमारा शरीर हमारा मन अगर ये स्वस्थ है तो आपके अंदर 3 क्वालिटी बहुत इजीली आ जाएगी। वो 3 क्वालिटी क्या है? दैट इज फर्स्ट इज क्लैरिटी इन माइंड, क्लैरिटी इन माइंड, प्योरिटी इन हार्ट एंड सिंसियरिटी इन वर्क। ये 3 क्वालिटी को हमको डेवलप करना है ताकि हम स्वस्थ भी रहे और साथ साथ हम अपना
जीवन को उपयोगी बना सके। देखिए हमारे पास सिंपल सा बात है कि हर व्यक्ति के पास में लगभग 70, 80, 90, 100 साल का लाइफ पीरियड है, जिसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन किसी न किसी माध्यम से अपने देश के लिए दे सकते हैं। तो अपने को कैसे उपयोगी बनाए, अपने को कैसे हम तैयार करें, ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सिर्फ मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग प्रैक्टिस करिए योगा। इट इज नॉट ओनली कि 21 जून को हम सब लोग योगा करेंगे और फिर बाद में भूल जाएंगे, तब नहीं बनेगा। आपको अपना दिनचर्या में योग का प्रैक्टिस करना है। योग मीन्स नॉट कि सिर्फ आसन करना योग नहीं है। योग के 8 अंग है, इसको अष्टांग योग बोलते हैं, जिसके अंदर यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसको पूरा प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आप योगी बनेंगे, और जब योगी बनेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपना पूरा लाइफ को और सुंदर ढंग से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर कपूर जी, जल शक्ति जो आंध्र चुके हैं और सर से दूसरे पढ़ने में आ रही है। तो मैं आगे बढ़ने से पूर्व सर आपको अवगत करना चाहूँगा कि कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो चुका है, वहाँ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के 5 बच्चे और साउथ डिस्ट्रिक्ट के 5 बच्चे, और हमारे कारण से नहीं हो पाया, जैसे 15 बच्चे यहाँ पर आज डिस्ट्रिक्ट लेवल में पार्टिसिपेशन करना था। दैनिक 10 बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं। तो विकसित भारत पार्लियामेंट पिछले वर्ष भी हमारा से कार्यक्रम हमने किए थे, तो इसमें से 10 बच्चे का हमारा फैमिली लिस्ट बनाए थे, उसमें 7 बच्चे बल्कि हमें पार्लियामेंट को भेज चुका। इससे पूर्व हमारे जो नेशनल यूथ फेस्टिवल हुए थे हमारे नई दिल्ली में, हमारे 30 बच्चे यहाँ से हमारे दो के गए थे, 7 बच्चे भी हमारे एडमिशन भेजे थे, कुल 45 बच्चे हमें भेजे थे आने से। तो हमारे लिए आज के जो विनर है, 3 विनर पार्लियामेंट भेजेंगे, तो वहाँ पर कोई खास कार्यक्रम में उनको लाया जाएगा। तो हमारे लिए आज हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अपूर्वा शर्मा जी, हमारे जन सेक्रेटरी तो ऑनरेबल रेगुलर गवर्नर जो आनंद को स्वागत करने के लिए मैं दिशा सिंह से निवेदन करूंगा सर को गुलदस्ता बैठ करके सर का स्वागत करेंगे। दिशा सिंह, कृपया आप हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अपूर्वा शर्मा सर को गुलदस्ता और एक साथ बनाने को स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे विशिष्ट अतिथि श्री रविंद्र राव सर की उपस्थिति यहाँ पर, सर को भी स्वागत करेंगे। मैं हमारे पीसीसी के प्रिंसिपल डॉक्टर मंजुलता राव जी, प्रिंसिपल पीसीसी से निवेदन करूंगा सर को गुलदस्ता भेंट करके सर को स्वागत करेंगे। सर हमारा कार्यक्रम में रिजल्ट आ चुका है।
मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय तथा अन्य सभी हमारे उल्लेख करूंगा सर, आप मंच पे पधारेंगे। आज के जो रिजल्ट है आप सब डिक्लेयर करेंगे। हेलो 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 हेलो, आज के जो हमारा कार्यक्रम यहाँ पर विकसित भारत डिस्ट्रिक्ट कुल 10 प्रतिभागी हमारे अकेडमिक को भाग लिए यहाँ पर। थर्ड प्राइज विनर है कॉमनवेल्थ फॉर अंडमान लॉ कॉलेज। Thank you. Second विजेता रहा संजना हमारे द्वितीय विजेता का भी स्वीकृत करें एक प्रमाण पत्र ट्रॉफी के साथ। मुख्य अतिथि महोदय अब मैं पुनः निवेदन करूंगा हमारे चीफ गेस्ट फादर से, हमारे जो प्रथम विजेता रहा निशा सिंह 2 लाख ताली सबसे ज्यादा नंबर 408 मिनट प्राप्त किया। सभी जजेस भी हाथ लगाए। अब मैं सभी पार्टिसिपेंट से जो हिमानी कौर आप मंच पर आइए पर कंसोलेशन प्राइज के दौरान प्रमाण पत्र आप कमेटी ग्रहण कीजिए। सेकंड हमारा भी अंशु कहते हैं मंच पर आइए। हमारे गेस्ट मुरली सर से निवेदन करूंगा कि आप हमारा कंसोलेशन प्राइज दें। Ashwin Tempo, next participant translation prize हमारे प्रिंसिपल मैम डॉक्टर वाटिल राम से निवेदन करूंगा ट्रांसलेशन प्राइज आदि प्रमाण पत्र भेंट करें। भरतराजन जय श्री आपको बहुत अच्छा है। हमारे सतम जी है यहाँ पर, उनसे निवेदन करूंगा कि आप एक प्रमाण पत्र भेंट करें। भरतराजन जय श्री भरतराजन जय श्री जोरदार ताली बजाइए। अख्तर अहमद हमारे प्रिंसिपल हमारे निवेदन करूंगा सर आप ग्लोबल स्कीम इंजीनियर आपके माइंड सर्विसेज का हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर कार्यक्रम हुआ था अंडमान लॉ कॉलेज में होस्ट किए थे
यहाँ पर आपको स्वागत है सर। आपसे निवेदन करूंगा सर, आप हमारे जो सेवंथ विनर है अख्तर अहमद को अब हमारे मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा, हमारे जो होस्ट यहाँ पर टीजीसी के प्रोग्राम हम लोग इस कार्यक्रम आयोजन किए हैं, तो हमारे प्रिंसिपल टीजीसी मैडम को एक हमारा मोमेंट वेट करके मैडम इस पर सब को वेट करेंगे। प्रिंसिपल टीजीसी मैडम रिसीव करेंगे और बिहार ऑफ टीजीसी डॉक्टर मंजुलता राव जी। मैं हमारा मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि सर आप हमारे कंसलेशन प्राइज आपका देवोजी के अंदर डिपार्टमेंट प्राइज वाले प्रिंसिपल श्री अजीत आनंद जी है, डिप्टी डायरेक्टर सर आपसे निवेदन करूंगा। जैसी गवर्नमेंट आपके माइक में आएगी, जैसी गवर्नमेंट हमारे बीच से सिद्दीक सर है, सर से निवेदन करूंगा कि आप उनको एक प्रमाण पत्र आप मोमेंट वेट करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम के पर्दे के पीछे जो लोग हमें सहयोग करते आए हैं, डॉक्टर सुनील सैनी टीजीसी के प्रेसिडेंट का मैं मुख्य अतिथि महोदय का भी सम्मान करें, ताकि आए भारत नहीं बल्कि सभी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करते रहे। इसके पश्चात जो पर्दे के पीछे हमारे डॉक्टर सुनीता पाटिल मैडम माई भारत के साथ नाम से जुड़े रहते हैं, उनको भी मैं हमारे चीफ गेस्ट महोदय से निवेदन करूंगा कि आप लोग को भी मोमेंट का उनका भी सम्मान करेंगे। माई भारत वाले कार्यक्रम में हमारे डॉक्टर सुनील सैनी और डॉक्टर सुनीता पाटिल मैडम का सहयोग देते हैं। और इसके पश्चात में हमारे अंडमान डॉक्टर कॉलेज के प्रिंसिपल जो होस्ट इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट लेवल का, सर को भी सम्मान के लिए मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा, सर को भी मोमेंट वेट करके सर आपका सम्मान करेंगे। अब हमारे नंदा पॉइंट से श्रीमती नामिला सिंह बाई भारत के साथ जुड़े रहती है, उनको भी मैं सम्मान करने के लिए हमारे बीच जॉइंट डायरेक्टर श्री सुब्रमण्यम चौधरी से निवेदन करूंगा, नामिला सिंह का सम्मान करेंगे। थैंक यू। मैं अब हमारे मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा, सर हमारे युवा वर्ग है और बजट को हम यहाँ पे अपना विचार रखिए, आगे हमारा आयोजन के विकास के लिए इनका जो भागीदारी रहेगा उस विषय में आप इनके मार्गदर्शन दें सर। यहाँ पे उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज सारे प्राइजेस जो डिस्ट्रीब्यूट हुए उनमें बहुत खुशी हुई है देख के कि अधिकतर जो थी वो लड़कियाँ थी, तो जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा एक स्टेप है और लड़कों को मेहनत करने की जरूरत है, ऐसा समझ में आ रहा है मुझे। और आप लोग यहाँ पे शायद 10 बजे से यहाँ पर हैं,
हाँ तो भैया ब्रिटिश और आप लोगों को भूख लगी होगी तो खाने में दिख रहा होगा तो ज़्यादा आप लोग नहीं देखी बट एक ही चीज़ है कि डेमोक्रेसी इज दी बेसिक फाउंडेशन जिससे हम जो आज जैसे हम ये कर रहे हैं कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमारी लाइफ वे ऑफ लाइफ होता है वो हमें फ्रीडम टू लिव आवर लाइफ द वे वी वांट ये आता है क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है क्योंकि ऑटोक्रेसी होती है या और होता तो फिर हमें हमारा जीवन हमारे इच्छाओं के प्रति हम नहीं जी पा रहे तो द बेसिक थिंग दैट कीप्स आवर कंट्री टुगेदर एंड टेक्स इट फॉरवर्ड इज डेमोक्रेसी आप लोगों का ये यूथ पार्लियामेंट का पूरा कार्यक्रम है ये आप लोगों को एक्सपोजर देने के लिए है कि कैसे हम डेमोक्रेसी में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट हो सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मैं एक छोटा सा सजेशन दूंगा आप लोगों को आप जो अपने यहाँ पे सरपंच और जो जितने भी प्रधान और सरपंच हैं गूगल करोगे ना तो उनके कई सारे के नाम आते हैं तो जैसे एक है जिन्होंने नौकरी होगी अच्छी नौकरी थी सब कुछ छोड़ के वो वापस अपने गाँव आए वहाँ पे पानी का बड़ा शॉर्टेज था यहाँ पे पानी का शॉर्टेज है सबको पता है तो उन्होंने उसके ऊपर काम किया और वहाँ पर महाराष्ट्र का है केस वहाँ पर इतना डेवलपमेंट है कि लोग वापस अपने गाँव आने लगे हैं तो पानी की शॉर्टेज ठीक हो गई वहाँ पे कोई भी करोड़पति से कम नहीं है आज की तारीख में तो एक सरपंच कैसे कितना चेंज ला सकते हैं तो डेमोक्रेसी जो है वो हर लेवल पे होती है आपको पता है आज अपनी जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम है ये भी ग्रासरूट्स लेवल से ही उठ के वहाँ तक पहुंची है हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का देख लो एग्जाम्पल तो आप लोगों को ये यूथ पार्लियामेंट का एक्सपोजर देने का पर्पज ये है कि हमारे जो इश्यूज हैं जो आप लोगों ने आज ब्रिटिश और अच्छे से डिबेट कर लोगे उन इश्यूज के ऊपर कैसे आप चेंज मेकर बन सकते हो और उसको सिर्फ एक बात करके खत्म करने वाली बात नहीं है कोई भी इंसान किसी भी चीज के पीछे अगर लग जाता है तो वो काम हो जाता है आपको लगता है कि हमारे शहर के लिए हमारे गाँव के लिए डेवलपमेंट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है आपको उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है तो दिस इज वन forum where you can learn how to push the agenda for the development of your territory और आगे चलते मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जो डेमोक्रेसी है उसको अच्छे से कंट्रीब्यूट करेंगे और आइडेंटिटी के जो बेसिक इश्यूज हैं हम तो बाहर से आते हैं आइडेंटिटी तो आपने दिया था एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव कौन होता है इलेक्टेड मेंबर्स बताते हैं क्या करना है कैसे करना है वो हमारा काम हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई यहाँ पर डैम करना है हम डैम बनाएंगे तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है एग्जीक्यूट करना लेजिस्लेटिव का काम होता है क्या करना है वो क्या करना है वो आप लोग इस टेरिटरी के भविष्य को और आपसे अलग चाहूँ तो शायद ही कोई समझ सकता है मेरा पूरा विश्वास है कि आगे चल के आप लोग इस टेरिटरी के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सर सभी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं कृपया मंच पर आएंगे अपना ट्रॉफी या सर्टिफिकेट के साथ में और सामने से आप ग्रुप फोटो के लिए यहाँ सामने बैठ जाएंगे सभी पार्टिसिपेंट्स प्लीज